جب ہم بھی گریجویٹ ہو رہے تھے ہمیں لگتا تھا کہ جی جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے گوگل مائکروسافٹ ایپل شاہ رخ خان کی طرح بائیں پھیلا کے کھڑی ہوگی آ جاؤ اور ہم کہیں گے کہ تھے 2017 میں بٹ کوائن ایک دم سے $20,000 پہ جمپ کرتا ہے اور اس کے بعد ہر کسی کو پتہ چلتا ہے اچھا بلاک چین ٹیکنالوجی کوئی چیز ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی 10 سال سے ایگزسٹ کرتی تھی لیکن ایک دم سے سو ایوری بڈی اسٹارٹڈ لوکنگ فار بلاک چین کے کریئر کے حوالے سے باتیں ہونے لگی, بلاک چین اسٹارٹ اپس کے حوالے سے باتیں ہونے لگی. اور اس کے بعد پھر ایک دم سے مطلب وہ دھماکہ جیسے مچتا ہے نا, ایک ڈسٹرپشن مچ گئی ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر. 30 ایئرز آفٹر 30 ایئرز انٹرنیٹ کو ہم فلی ایکسپلور نہیں کر پائے. ٹرو, ٹھیک ہے, تو بلاک چین کو ہم کیسے فلی ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم بلاک چین میں پیچھے رہ گئے, ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے, تو ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں. میری بیٹی کو نا کسی نے کہا کہ اس کے غالباً ماموں نے کسی نے کہ جی تم سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لو. شی واز ایٹ دیٹ ٹائم شی واز ان 6th کلاس. اچھا, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جی آج کل بڑا اس کا وہ ہے, ٹھیک ہے, آج کل بڑا اسکوپ ہے. تو میں نے کہا آج کل اسکوپ ہے, گریجویشن اس نے کوئی 8-10 سال بات کرنی ہے, تب تو اسکوپ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نارملی نا 2 موویز لوگوں کو ہمیشہ وہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اے آئی کو, اے آر وی آر کو اور میٹاورس کو سمجھنا ہے, ایک تو ریڈی پلیئر 1 ضرور دیکھیں, سیکنڈ از فری گائے. یہ 2 موویز ضرور دیکھیں, ریڈی پلیئر 1 اینڈ فری گائے. یا یہ 2 موویز ایسی ہیں جو آپ کو میٹاورس کی دنیا اور اے آر اور وی آر کی دنیا سمجھاتی ہیں ود اے آئی, ود جنریٹیو, ایون ود جنریٹیو اے آئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ ساری اپرچونیٹیز, گورنمنٹ آف پاکستان از لوزنگ دس ٹیلنٹ. مطلب یار آپ کو یہاں پہ اگر ٹیلنٹ خود بیٹھا ہوا ہے, کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, ایکسپرٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ یو ایس کے اندر فارچون 100 کمپنیز کو ہیلپ کر رہی ہیں, ان کے گورنمنٹ سسٹمس کے اندر کام کر رہی ہے, تو بھائی آپ ان سے کیوں نہیں ہیلپ لے رہے ہو؟ یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں احمد بھائی, بیچلرز ان ڈیٹا سائنس لانچ ہو گیا, بہت ساری یونیورسٹیز نے شروع کر دیا. بیچلرز ان بگ ڈیٹا, بیچلرز ان سائبر سیکورٹی, بیچلرز ان بلاک چین میں نے کہیں نہیں دیکھا. جو اپنی ایگو میں کچھ سیکھنا نہیں چاہتا نا انسان, وہ ایک جگہ پہ پھنسا رہتا ہے ہمیشہ, تو یہاں پہ پرابلم آتی ہے. السلام علیکم گائز, ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف یوتھ آن دا رائز. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر چودھری اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر. جی ہاں, وہی بلاک چین ٹیکنالوجی جس کے کریئر کے حوالے سے بہت زیادہ مزے کی اور بڑی موٹیویشنل باتیں ہوتی تھیں, اور آج وہ کس حال میں ہے اور اس کا فیوچر کدھر ہے, ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے جانے مانے بلاک چین ایکسپرٹ موجود ہیں. پاکستان میں جب بھی بلاک چین کی بات ہوئی, بلاک چین ایکو سسٹم میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ اب تک پاکستان کے اندر ہوئی, اس میں ان کا ایک میجر کردار رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ چاہے گورنمنٹ لیول پہ پالیسی میکنگ کی بات کریں, یا ہم لوگ بات کریں کوئی بھی انیشیٹیوز جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشنل انیشیٹیوز ہوئے, یا مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں, تو ہمیشہ ماشاء اللہ جو ہے وہ موجود پائے وہاں پر. سو پلیز ویلکم دا گریٹ احمد منظور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو احمد بھائی. جزاکم اللہ خیر. یہ بڑا لانگ اویٹڈ شو تھا, جو آج ہو رہا ہے. فائنلی اٹس ہیپننگ. الحمدللہ. سو احمد بھائی, سب سے پہلے تو بلاک چین 2017 میں بٹ کوائن ایک دم سے $20,000 پہ جمپ کرتا ہے اور اس کے بعد ہر کسی کو پتہ چلتا ہے اچھا بلاک چین ٹیکنالوجی کوئی چیز ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی 10 سال سے ایگزسٹ کرتی تھی لیکن ایک دم سے سو ایوری بڈی اسٹارٹڈ لوکنگ فار بلاک چین کے کریئر کے حوالے سے باتیں ہونے لگی, بلاک چین اسٹارٹ اپس کے حوالے سے باتیں ہونے لگی. اور اس کے بعد پھر ایک دم سے مطلب وہ دھماکہ جیسے مچتا ہے نا, ایک ڈسٹرپشن مچ گئی ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر. تو یہ سب 2017 میں ہو رہا ہے. وین ڈیڈ یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ بلاک چین اینڈ وین ڈیڈ یو اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ بلاک چین, اور اس کے بعد اب تک کا جو آپ کا ماشاء اللہ بلاک چین کا کریئر جرنی ہے اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں. اچھا, میری ہسٹری بڑی مزے کی ہے. بیسکلی میرا جو بیک گراؤنڈ ہے دیٹ از اباؤٹ نیٹورکس لائک سسکو اینڈ ایوری تھنگ. تو زیادہ تر لوگ مجھے اس کے حوالے سے جانتے ہیں الحمدللہ. اور دین ایک دن یعنی یہ کہہ لیں کہ جب میں نے اپنی کمپنی بنانے کا سوچا تو وہ کمپنی وہی تھی, سروس بیس نیٹورکس کا کام کرے گی اور سارا کچھ کرے گی. تو میں دبئی سے واپس آ رہا تھا, تو بلاک چین ریولیوشن کے نام سے ایک بک تھی. اچھا, اس سے پہلے میں بھی بائی دا وے آئی ایم دیٹ پرسن کہ بلاک چین پہ کیا کام کرنا ہے, دیٹ از دا سیم بٹ کوائن, اور چھوڑو یار چھوڑو. تو ہوا یہ کہ میں نے وہاں سے نا یہ کہہ لیجیے کہ دبئی میں وہ کتاب پرچیز کی ہے, تو لاہور پہنچنے تک کتاب ختم ہو چکی ہوئی تھی, اور میں سوچ چکا ہوا تھا کہ نہیں, بلاک چین ایک بہت بڑی انٹرنیٹ ٹائپ کی ریولیوشن ہے, تو بھائی جمپ کر لو اس پہ ابھی سے. تو ان 2018 میرا وہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے. ہاں جی, پہلی سرٹیفکیشن بھی میں نے میرا خیال ہے اینڈ آف 2018 کی, اسی طرح کمپنی رجسٹر کی اور سارا سلسلہ. اور بس پھر 2019 میں وہ سارا سلسلہ شروع ہوا ایک الحمدللہ. اور
सितंबर 2018 से एक्चुअली, तो वो बस चलता आ रहा है आपके सामने सारा कुछ। शुरू में थोड़ी सी जो चैलेंजेस आए थे तो आपको लोगों को जाके बताना पड़ता था ब्लॉकचेन, तो वो साथ जो आपने कहा ना कि एक वो चल रहा था बिटकॉइन की बात कर रहे हैं आपको, नहीं हम तो उस पर बात नहीं करते, तो फिर उनको समझाने के लिए नहीं जी ब्लॉकचेन इज समथिंग एल्स, बिटकॉइन इज समथिंग एल्स, प्लीज आप जो है ना, तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है इस बात की। बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज़ जो देखी गई कि हमेशा ये एक सीजनल जॉब रोल रहा, मतलब कोई भी एक ब्लॉकचेन प्रोफेशनल है वो उसकी या तो मतलब लेट्स से जब सीज़न चल रहा है ना, तो यानी कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है वो पीक पे जा रही है, हाई है, तो उस वक्त जनाब बड़ी उसकी धूमधाम होती है कि जी ब्लॉकचेन वाला जो बंदा है ना वो पैसे छाप रहा होता है, चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, उसके अंदर स्टार्टअप्स खुल रहे होते हैं, फंडिंग आ रही होती है, इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जॉब्स क्रिएट हो रही होती है, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, लेकिन जो यानी जिसने दिहाड़ी लगानी है वो उस वक्त लगा लेता है, और उसके बाद फिर जनाब एकदम से डाउनफॉल आता है, या कहते हैं ना विंटर सीजन आ जाता है, तो वो फिर वो सालों साल भी चलता है अक्सर। जैसे अब हमने बात की कि 2017 में एकदम से बूम आया, उसके बाद फिर पट्टा बैठ गया, फिर 2021 में NFTs का दौरा आता है, मेटावर्स आता है, तो फिर एकदम से हाइप क्रिएट होती है, और आजकल फिर वही हालात हैं कि डाउनफॉल चल रहा है। तो किसी को अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर मतलब ब्लॉकचेन एज प्रोफेशनल करियर अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो अपनी जगह पर है, तो व्हाट इज योर एडवाइस? देखें, करना चाहिए बिकॉज इट्स अ फ्यूचर। यानी हमारे यहाँ एक्चुअली ना लोगों को ये लगता है, जैसे अभी आपने बात की ना कि कॉइन्स बना लें, वो एक्चुअली उस टाइम पे अचानक से कॉइन्स बनना शुरू हो गए, एक्सचेंजेस बनना शुरू हो गए, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लोगों को लग रहा था बस यही है। द सेम थिंग जो मैं नॉर्मली मिसाल देता होता हूँ ना, कि जब ईमेल आई थी तो जी हम ईमेल भेजते थे, ओए अच्छा 15 दिन का प्रोसेस ईमेल का आपने सेकंड्स पे ले आए। बिल्कुल। तो इसीलिए खैर मैं शरारतन, वो मेरे सारे स्टूडेंट्स कहेंगे शरारतन बात करता हूँ कि जी तब जो है ना मोहब्बतें सच्ची हुआ करती थी, लेटर देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी भाई, ठीक है ना, राइट। खून से भी लिखते थे ना अक्सर, खून से भी लिखा जाता था, यहाँ पे भी नाम लिखवाते होते थे, टैटूज, हाँ टैटूज बनते थे। तो वो डिजिटल लेटर खून से कैसे अब वो जो है ना व्हाट्सएप पे वो करके ना कि जी तुमने खाने का नहीं पूछा, ब्रेकअप, जो आजकल की जनरेशन, ठीक है। सो वो एक्चुअली वही वाला दौर था जब 10 बजे के बाद कॉल आती थी तो 2 चीजें सिर्फ हुआ करती थी, या तो कोई दुनिया से चला गया या कोई दुनिया में आ गया, ठीक है। सही। तो द सेम थिंग, यानी ब्लॉकचेन में भी बिटकॉइन आ गया, ओके दैट्स फाइन, लेकिन क्या हम उसको आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे इंटरनेट की तरह? आज 30 इयर्स आफ्टर 30 इयर्स इंटरनेट को हम फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ट्रू, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को हम कैसे फुली एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो जो लोग ये बात कर रहे होते हैं ना कि जी हम ब्लॉकचेन में पीछे रह गए, हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, तो ऐसा कुछ नहीं है असल में। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, पूरी दुनिया सप्लाई चेन पे और डिफरेंट जहां पे आपको ब्लॉकचेन चाहिए उस पे काम कर रही है, लेकिन सारे रिसर्च कर रहे हैं, अभी सारे रिसर्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलप करके सामने नहीं आ गया हुआ है। हमारे यहाँ जो है ना वो जी कॉइन बना दो, तो अब वो जब कॉइन का दौर आता है तो लोग फटाफट अपना कॉइन बना के ना मार्केट में फेंकना शुरू कर देते हैं, इसलिए पैसे भी बनाना शुरू कर देते हैं। अब आपने मुझे, यानी मैं एक्सपर्ट तो नहीं अपने आप को कहता, लेकिन आपने मेरा जिस तरीके से इंट्रो कराया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, कि मैंने आज तक ना कोई क्रिप्टो करेंसी ली है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं लेने का कभी कोई इरादा रखता हूँ, ठीक। हाँ CBDCs के मैं हक में हूँ, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, हमें उस पर काम करना चाहिए क्योंकि दैट इज द फ्यूचर। लेकिन वही बात, ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। अब आपने जैसे कैरियर की बात की, तो कितनी देर बाद ये फ्यूचर बन जाएगा? यानी आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने दुनिया चेंज करनी है। फर्स्ट इज IoT, द स्मार्ट टेक्नोलॉजी वी ऑल आर वर्किंग ऑन। सेकंड थिंग, एक तो दरमियान में फौरन चैट GPT आ गया, जनरेटिव AI आ गई, सारी दुनिया उस तरफ चल पड़ी। दे मिस्ड आउट द ब्लॉकचेन। उनको लगा कि नहीं पहले पैसे इससे बना लें, बाद में सोचेंगे क्या करना है हमने। जो मिडल लेयर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसको आप कह लीजिए डिजिटल आइडेंटिटीज की लेयर या ऑथेंटिकेशन की लेयर, दैट इज ब्लॉकचेन, ठीक है। तो अगर आप अभी IoT पे चले जाते हैं, ठीक है, यानी अगर आप कल वो हो रहे हैं ना, पास आउट हो रहे हैं, देन आपको डेटा साइंसेस आना चाहिए, जो कि आपकी एक्सपर्टीज है माशाल्लाह, या आपको क्लाउड आना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 साल बाद हो रहे हैं या 1 साल बाद हो रहे हैं तो आपको IoT आना चाहिए। अगर आप 3 से 4 साल बाद हो रहे हैं तो आपको ब्लॉकचेन आना चाहिए। उसके बाद AI। लेकिन इन सब, जब आप अगर सपोज करें आपने IoT की कोई प्रोडक्ट बना ली है, उसके अंदर आपने प्रोविजनिंग नहीं रखी ब्लॉकचेन की और AI की, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने AI की, जैसे आज जनरेटिव AI, अगर आप उसमें ब्लॉकचेन की वो नहीं रखते हैं, तो आप उसको अभी भी देखें, आप जो जनरेटिव AI पे काम करते हैं या उसके अंदर या चैट GPT के ऊपर हिस्ट्री आ रही होती है, लेकिन वो हिस्ट्री ब्लॉकचेन पे नहीं है क्योंकि Web 3.0 नहीं है। तो अब अगर वो नहीं होगी तो कल को ये चैट GPT जीरो, ठीक है, वो आपकी हिस्ट्री नहीं बता पाएगा, वो Web 3.0 से इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएगा। फिर इसी तरह अगर आपने ब्लॉकचेन की कोई प्रोडक्ट बनाई है और उसमें IoT और AI की चीज़ें नहीं है, उसकी इंटीग्रेशन नहीं है, तो दैट इज जीरो। आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है ना। वही है, वो पाकिस्तान में वही हाल है ना
MBA कर लो, आजकल बड़ा काम है इसका। हाँ। लोग सोचते हैं 4 साल बाद नहीं होगा। लोगों को ये समझ नहीं आती। या जी मैं इस पे एक किस्सा छोटा सा बताऊं। मेरी बेटी को ना किसी ने कहा कि उसके गालबन मामू ने किसी ने कि जी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो। शी वाज एट दैट टाइम शी वाज इन 6th क्लास, अच्छा और उसको कह रहा है कि जी आजकल बड़ा इसका वो है, ठीक है, आजकल बड़ा स्कोप है। तो मैंने कहा आजकल स्कोप है, ग्रेजुएशन इसने कोई 8-10 साल बाद करनी है, तब तो स्कोप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें वो सोचना चाहिए, आगे की तरफ चीजें सोचनी चाहिए, रादर देन के हम सोच रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। तो एक्चुअली हम लोग ज्यादातर शॉर्टकट में पड़ जाते हैं ना, तो मुझे ये इशू नजर आता है वैसे। अंडरस्टूड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा अगला सवाल ये था कि ICO का दौरा आया और उसमें काफ़ी लोगों ने बड़े पैसे भी कमाए, लेजिटिमेटली भी कमाए और दूसरा इलीगली भी कमाए। तो ICO का एक, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप्स, क्योंकि IPO के अंदर तो आपको पता है कि रेगुलेशंस होती हैं, आपको एक थ्रेशोल्ड तक रीच करना होता है रेवेन्यू वाइज, फिर आप IPO में जा सकते हो, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हो। लेकिन ICO में ये था कि अगर आपका भी स्टार्टअप लॉन्च इन यूवर्स, इट्स जस्ट इन द कंसिडरेशन, या एक उसका जो है वो सिर्फ आइडिया है और उसको आप ICO करते हो, अपना कॉइन लॉन्च करते हो और उसके बाद यू कैन गेट फंडेड, क्राउड फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है सारा। तो लेकिन उसमें फिर बहुत सारे स्कैम्स भी आए, उसमें वो पंप एंड डंप वाला आया, वो शिट कॉइन्स का एक टर्म यूज़ होता है, और ड्रग पुल वाली चीज़ें शुरू हुई और सारा कुछ हुआ, और उससे बहुत सारे लोगों ने पैसे लूज़ भी किए। तो इवेंचुअली फिर रेगुलेशंस आई कंट्रीज़ की डिफरेंट के, यार इसके ऊपर डेफिनेटली रेगुलेशन सख्त हुई और सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर वो सीन थोड़ा सा बैठ गया। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरी नज़र से तो कोई ऐसा नहीं गुजरा अभी तक कोई स्टार्टअप जो कि एक ICO के थ्रू फंडिंग लेके यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना और $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन पे गया हो। सो आपकी नज़र में कोई ऐसा है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, आपकी क्या राय है? एक्चुअली देखें, उसमें ज़्यादातर फ्रॉड्स ही हुए हैं, ठीक है। उसमें लोग, ठीक है, आपने कॉइन्स ले आए लेकिन वो कॉइन चला ही नहीं, तो वो 1 मिलियन तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है ना। यानी आप अपने कॉइन को रजिस्टर, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर होता गया था, उसके अंदर लोग कॉइन बना लेते थे। अब कॉइन की उन्होंने वो ICO कर दिया, अब कॉइन को उनको रेगुलाइज करने में या उसको वो करने में वो फिर ना लोगों की मिन्नतें करते थे जाके कि जी इतना खरीद लो, इतना कर लो, और जी रेगुलाइज कर, इस पर रेगुलेशन ले आओ, फलां 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 फलां। इस वजह से ये चीज़ें नहीं चली। अब अगर मैं इसको आपको प्योर इकोसिस्टम बनाऊं, जो कि बेसिकली KPK में हम जिस पे बातचीत कर रहे थे, आपको याद है मैं कमेटी का एक पार्ट भी बना था, हम उसके अंदर ये आइडिया लेके आना चाह रहे थे कि आप ICO करें थ्रू CBDC प्लस रेगुलेशंस। यानी वहां पे जो पहली ऑफर आ रही थी, जब जो पुराने IT मिनिस्टर थे उनके साथ जो ऑफर्स आनी शुरू हुई थी, वो 3 से 4 करोड़ रुपए की आनी शुरू हो चुकी हुई थी। ठीक। एंड हमें यानी कि उसमें से शॉर्ट लिस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि हम किस किस बंदे को पाकिस्तान लेके आए। यानी इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही थी, और ये हंड्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें यानी इशू हो रहा था कि अब किसको हम फॉरन करें। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन ICO। यानी हम उसके अंदर खैबर कॉइन निकालने लगे थे, ठीक है, कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, हम आपको बताएंगे बकायदा कि आपका ये वाला कॉइन कहाँ कहाँ पे लीगलाइज है। बिल्कुल ठीक है। अब आपको जब तक आप उसका इकोसिस्टम नहीं डिजाइन करेंगे ना, आपको नुकसान होगा। जैसे आपने देखा है पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने लगाया, अच्छा हमारे यहाँ ना वो सक्सेस स्टोरीज आपको हमेशा सुनाई जाती हैं, जो जिन्होंने लूज किया था, नहीं वो दूसरे को भी कह रहा था, नहीं मुझे फायदा हुआ है, ठीक है, ताकि इसका भी नुकसान दोनों मिलकर बैठ कर रहेंगे। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है। तो द पॉइंट इज कि अगर हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, उसको कनेक्टेड, क्योंकि देखें ये छोटा इकोसिस्टम नहीं है। आपको इसके अंदर वो, जैसे हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या बात करते हैं कि जी FIA का क्या लेना देना है, जी FBR का क्या लेना देना है, जी इसका क्या स्टेट, इन सब का ही तो लेना देना है असल में। इन सबको तो रेगुलाइज करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखें डिजिटलाइजेशन का जो मजे की बात है, आप माशाल्लाह खुद टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डिजिटलाइजेशन की खूबसूरती ये है कि एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर। फिर उसके बाद काम स्मूथली होना शुरू हो जाते हैं। आपने घर भी लेना है तो वो आप ICO के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ICO इज बेसिकली लीज काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसा ही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, बस ठीक है कर दो जो करना है, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली तो आप लीज कर रहे हैं ना, उसके बाद अगर आपका वो कॉइन किसी और जगह चलता है, आप उसको एक्सचेंज कर लें, कॉइन को आप किसी और से कन्वर्ट कर लें, आप वापस पैसे ले लें, दैट्स इट, आपका शेयर खत्म हो गया। जैसे वो मैं नॉर्मली मिसाल देता होता हूँ कि जी इट्स कॉइन इज लाइक ए प्राइस बॉन्ड। जैसे आज से बहुत साल पहले आप जब हम लाइनों में लग के वो जमा करवाया करते थे ना, बिल्स जमा कराया करते, वहां पे एक दो बंदे ऐसे जरूर थे जिसका प्राइस बॉन्ड हुआ करते थे, वो कैश की जगह प्राइस बॉन्ड जमा कराता था, वो जमा कराता होता था। तो दैट इज द सेम थिंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। हम लोग वो जो है ना, वही पंप एंड डंप वाली गेम में चल पड़ते हैं, बस जी आज चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ट्रेडिंग कर।
That is not the real use case of blockchain. Still मैं उधर ही खड़ा हूँ. हमारी जो पहली दफा भी डिस्कशन हुई थी आपको याद है, ठीक है, जब आपने बड़ा मजे का खाना भी खिलाया था मुझे. सही. तो अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे रेगुलेशंस जैसे जैसे आना शुरू हुई 2020-21 में, व्हेन द डिफरेंट स्टेट्स जो है गवर्नमेंट्स हैं उनको रियलाइजेशन शुरू हुई कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, इसको कुछ लगाम देनी पड़ेगी. तो उसके बाद हमने देखा कि 2021 से ऑनवर्ड्स वीसीज काफ़ी इसके अंदर जंप इन होना शुरू हुई. ज़ाहिर है क्राउड सोर्सिंग रुक गई, अब वीसीज ने इस पे वेब 3.0 बेस्ड स्टार्टअप्स पे फंड करना शुरू किया. 2022 के Q1 के अंदर $9 बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट वीसीज की तरफ से हुई. यानी कि एकदम से हलचल मच गई कि यार व्हाट इज हैपनिंग. Q1 की बात कर रहा हूँ 2022. जी. और उसके बाद अब 7 क्वार्टर्स गुजर गए, वो डिक्लाइन में ही है. और लेट्स से Q3 की अगर बात करें 2023 की, सो हार्डली $0.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई. और मतलब कंटिन्यूस एक डिक्लाइन चल रहा है पिछले 7 क्वार्टर्स से. बिल्कुल ऐसा ही है. और आगे डेफिनेटली अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो मजीद वो डिक्लाइन जाते जाते, यानी कि जो वीसीज हैं दे हैव लॉस्ट देयर फेथ मे बी. एक्चुअली फेथ का मसला नहीं हुआ, आप प्रोडक्ट का मसला कह लें इसको. द रीजन इज उस टाइम पे ना लोगों को ये लगा, जैसे चले मैं इसकी मिसाल देता हूँ. मेरे पास ना एक स्टूडेंट आता है, मुझे कहता सर मेरे पास देखें मैंने ना इतने कॉइन विन कर लिए, $1 मिलियन मिलियन कॉइन्स मैंने जो इस गेम में विन कर लिए. मैं कहा अच्छा, तो मुझे आगे से कहता सर जिस दिन ये कॉइन चल पड़ा ना मैं मिलियनेयर हूं. जिस दिन एग्जैक्टली वो दिन आज तक नहीं आया. क्या कहते हैं बंदर के ख्वाब में शीशड़े. एग्जैक्टली. सो द पॉइंट इज कि जी तब NFTs का बहुत ज्यादा वो दौर रहा था. VCs को नजर आया कि ओहो बस इसमें हम पैसे लगा देते हैं, ये जी मेटावर्स पे भी गेम बना देंगे, वो जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा. एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ. गेम्स आर स्टिल देयर. बल्कि वो मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ दिस इज द सेम मैकेनिज्म जो नॉर्मली यूज हो रहा है कि आपको उनकी करेंसी चाहिए होती है गेम की कि जी मैंने इसमें परचेज करनी है कोई चीज, आपको वो कॉइन्स चाहिए होते हैं. वो कॉइन्स जब तक CBDC या ओरिजिनल करेंसी के साथ नहीं जुड़ते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. yes. तो आप सिर्फ कॉइन जनरेट करना तो मसला ही कोई नहीं. तो जब VCs को ये बात समझ आई ना कि ओ शिट ये क्या हुआ, ठीक है, तो वो वहां से वो बैक ऑफ किए सारे के सारे के भाई ठीक है जो चलेगा ज्यादा नहीं लगाने अब इस पे. So this is the point. यानी कि मुझे ये फील होता है कि ये इस तरह ये प्रोडक्ट का इशू हुआ है. दिस इज नॉट समथिंग कि उनका फेथ कह सकते हैं कि यानी कि आपके अगर मैं अल्फाज में उसको उस तरफ ले जाऊं कि हाँ अचानक से फेथ डाउन हुआ कि नहीं यार ये तो बच्चे ना हमसे पैसे ले रहे हैं. जैसे बैठने को तो एक बहुत बड़ा वो गालबन था, बहुत बड़ा स्टार्टअप था जो ये घर चीजें नहीं देता था, मैं नाम भूल गया हूँ, जो $300 मिलियन लेके आया था पाकिस्तान में. एक तो वो था ना क्या नाम है उसका, एयरलिफ्ट. या तो ही गोज डाउन. यानी कि मुझे आज तक नहीं समझ आई कि वो कैसे डाउन चला गया. और विद इन अ मंथ और 2 जब उनको $300 मिलियन मिले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग $300 मिलियन उनकी माइलेज खत्म हो गई थी, फंडिंग मजीद मिल नहीं रही थी. और तो मैं वही परेशान हो गया कि यानी कि 2 महीने उन्होंने 2 महीने के अंदर सारे अपने ऑपरेशन बंद कर दिए. मैं खुद परेशान हो गया. अब जब उनके साथ ये हो सकता है तो ये तो फिर सिर्फ ख्वाबों में जी रहे थे लोग. तो दिस यानी कि मुझे ये फील होता है इसमें. राइट. तो यानी कि हम लोग अगर बात करें तो फिलहाल यानी कि बिल्कुल ठंड माहौल है. और जो ब्लॉकचेन के प्रोफेशनल्स हैं उनके पास ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी लिमिटेड मौके हैं. सो अभी इसी बात से मैं अगला सवाल कनेक्ट करता हूँ. पाकिस्तान की तरफ आते हैं. ग्लोबल लैंडस्केप की तो हमने बात कर ली. पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के थ्रू हमने ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग करवाई. बड़ी हमारी मोटिवेशन हाई थी माशाल्लाह. आपने हमारे साथ मिलके एक ज़बरदस्त किस्म की एग्जीक्यूशन की. इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और बहुत सारे लोग उससे जो है वो माशाल्लाह उससे सीखे और फ़ायदा उठाया, जो यूथ है हमारी उसने. लेकिन जाहिर है मार्केट में जब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ग्लोबली भी और लोकली भी, फिर इसी तरह प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव माशाल्लाह एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव आई वुड से कि एक, लेकिन अगेन वही बात थी कि एक थोड़ा सा भेड़ चाल थी शायद कि यार इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी. दैट्स वाई एक नेक नियति से उस इनिशिएटिव को लिया गया और उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया. लेकिन अब वो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि आर दे स्टिल इन ब्लॉकचेन, यानी उसका ट्रेनिंग का अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव की ट्रेनिंग थी उसका आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट आया? देखें जितनी भी ट्रेनिंग हुए हैं ना, यानी कि मैं कामयाब जवान गई, आपको पता मैं सब इनिशिएटिव्स का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम उसमें रहा हूँ. देखें हुआ ये है कि बच्चे, मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो आपके साथ भी हम लोगों ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग और अरेंज जो की थी, उसमें भी स्टूडेंट्स को मैंने यही बताया था कि जी अगर तो आप ये सोच रहे हैं ये करके आपको फौरन काम मिल जाएगा, आप गलत सोच रहे हैं. राइट. क्योंकि मेरे साथ एक मसला है, वो आपको पता है, मैं झूठ नहीं बोलता. मैं झूठ नहीं बेचता हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. हाँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, सिंपल है. राइट. कि जी मैं गलत बयानी नहीं करता हूँ. राइट. तो मैं अगर उनको ये कहूँगा ये करके जी आप $1000 कमा, गलत बात है.
یہ کر کے آپ پریکٹس کریں, آپ ان پائنیئرز میں ضرور ہوں گے جن کو 2 سال بعد سب سے پہلے جاب مل رہی ہو. رائٹ. ہاں اب ویب 3.0 آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو وہاں پہ لوگ ایڈجسٹ ہونا شروع ہوئے ہیں, کیونکہ بیک اینڈ بلاک چین ہے, فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ ہی ہے, وہ سیم ویب 2.0 کی طرح ہی چل رہا ہے. لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ویب 3.0 میں کیا ہوا بن جانا. وہ جیسے میں شرارتاً وہی پھر شرارتی مثال ایک دماغ میں آ گئی, میں نارملی نا اپنے سیشن میں بات کرتا ہوں, جو ینگسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اپنی ہسٹری نہیں ڈیلیٹ کر پاؤ گے, بھاویں جو مرضی کر لو, ٹھیک ہے نا. ریزن از کہ جی آپ اپنی میں نے کہا پھر دھیان سے کرنا جو بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اب آپ اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیں, یعنی کوئی بھی نئی کمپنی کوئی آؤٹ آف دا باکس سوچے, کیونکہ ہم لوگوں نے کیا کر لیا, ہم نے جی کمپنیاں کھڑی کر لیں, اب ہمارے پاس کام تھا کوئی نہیں. اب ہم وہی, میں نے بہت سارے لوگوں کو بیکورڈ جاتے ہوئے دیکھا کہ جی ہم نے NFT کی گیم ڈیولپمنٹ کر لی, او ہو یہ ہم کیا کر بیٹھے, چلو جی واپس اپنی پرانی گیم ڈیولپمنٹ. حالانکہ ان کو پتہ کیا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر پروویژن رکھ لیتے کہ کل کو اگر آپ نے بلاک چین پہ آنا ہے تو یار جسٹ ان اے کلک اوے, کہ آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو جسٹ یہ کرنا ہے. تو وہ لوگ اس طرف نہیں گئے اور بس دیکھ رہے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ یعنی کہ 3 ایئرس کا میں اس کو اگر پریڈکٹ کرنا چاہوں تو 3 ایئرس میں آپ کو بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ. تو میٹاورس میں کبھی انویسٹ کیا آپ نے؟ خیر آپ نے تو میں نے کبھی انویسٹ کیا ہی نہیں, کوئی پلاٹ نہیں خریدا کبھی. میں وہ نا اس پہ بھی ایک مثال بڑی مزے کی نا, وہ میں نارملی لڑکیوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جی یہ جو تمہیں لگتا ہے نا, میں نے کہا ایک لڑکا ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے US میں بیٹھ کے چاند پہ گھر بیچ رہا, اور پاکستان میں ایک بندے نے اس پہ خریدا اور بڑا جی اس کے اوپر پتہ نہیں کسی یوٹیوب چینل نے نا کوئی باقاعدہ ڈاکومنٹری بنا دی کہ بندہ پاکستانی پہلا پاکستانی چاند پہ گھر خرید لیا, پلاٹ خرید لیا, ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں $150-200 کا جتنے کا بھی. اچھا تو میں نے ان کو, میں بچوں کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو تم لوگ, میں نے کہا تم لوگوں کو لگتا ہے یہ ہسبینڈ نے کوئی اچھا کام کیا؟ کہتی کیا مطلب ہے سر؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا تم دنیا سے نکلو تاکہ دوسری کا چانس بنے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یہ جو لڑکیاں خوش ہوتی ہیں نا, بندہ آگے سے کہہ رہا تم حور جیسی لگتی ہو, میں نے کہا حور کا مطلب یہ نہیں, تو وہ کہتا تم جنت میں جاؤ تاکہ اگلوں کا چانس بنے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اس لیے زیادہ خوش نہ ہو جایا کرو. تو میٹاورس کی جو ریالٹی ہے دیٹ از ڈفرینٹ, یعنی ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو کر لیا ہے کہ جی یہ تو بس جو ہے نا زمین خرید لو, اور یہ یعنی کہ اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ جی کوئی انسان بل بورڈ پہ جاتے ہوئے اس کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں. میں نارملی نا 2 موویز لوگوں کو ہمیشہ وہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے AI کو, AR VR کو اور میٹاورس کو سمجھنا ہے, ایک تو ریڈی پلیئر 1 ضرور دیکھیں, سیکنڈ از فری گائے, یہ 2 موویز ضرور دیکھیں. ریڈی پلیئر 1 اینڈ فری گائے, یا یہ 2 موویز ایسی ہیں جو آپ کو میٹاورس کی دنیا اور AR اور VR کی دنیا سمجھاتی ہیں ود AI, ود جنریٹو, ایون ود جنریٹو AI. اگر آپ ٹیکنالوجی سے اس طریقے سے مووی کو دیکھتے ہیں, اگر آپ ایسے دیکھتے ہیں نا او اچھا وہ آپ کے لیے نہیں ہے, رائٹ. تو وہ ضرور دیکھیں اگر آپ نے ان 2 ٹیکنالوجیز کو سمجھنا ہے. گاٹ اٹ, بالکل صحیح. تو احمد صاحب ہم لوگ اگر بات کریں, UAE نے کافی گورنمنٹ لیول پہ بلاک چین کو کافی جگہوں پہ اڈاپٹ کیا. اسٹونیا کہا جاتا ہے کہ پہلا ملک ہے جس نے فلی اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کیا اور بلاک چین کو سب سے پہلے اڈاپٹ کیا. سو پاکستان میں کوئی اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز آنے کا امکان ہے ہماری زندگی میں؟ امید ہے. The reason is کہ جی شاید انہوں نے 2020 میں جو ان کے چیئرمین تھے, جو بھی ہوتے ہیں گورنر, یا جو انہوں نے دیا تھا کہ ہم CBDCs پہ کام کر رہے ہیں. obviously مجھے نہیں پتا کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو مجھے پتا لگ جاتا کہ اوکے دیٹس اٹ, اور اتنا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں تھا یہ. تو دیکھیں اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز بنانی شروع کریں گے نا جب, تو ظاہر اسٹیٹ بینک کو ریگولیشنز بنانی پڑے گی, بالکل, بیکاز CBDCs اونڈ بائی اسٹیٹ بینک, اینڈ دیٹ از یعنی کہ وہاں پہ FBR بھی رجسٹر ہوگا, وہاں پہ باقی بھی لوگ رجسٹر ہوں گے وہاں پہ, تو وہ ہر چیز کو ریگولائز کرنا پڑے گا. اینڈ دیٹ از ناٹ, یعنی کہ اس کی دیکھیں بلاک چین, AI اور اس ساری ڈاکومنٹیشن وغیرہ کرنے کو نا, جو مین چیز ہے نا وہ ہے اس کی ڈیزائننگ. اگر آپ نے آرکیٹیکچر ڈیولپ کر لیا ہے نا دین دیٹس اوکے. اگر اس میں آپ چوک گئے ہیں نا پھر کوئی بھی فراڈ کر سکتا آپ کے ساتھ. تو دس از دا تھنگ بیسکلی. ابھی جیسے میں دبئی سے جب جائٹیک سے واپس آ رہا تھا تو ایک بڑا زبردست مجھے وہاں پہ امیج پروسیسنگ کے اوپر انہوں نے بعد میں ایمریٹس کی فلائٹ پہ انہوں نے اس کو لانچ کیا. اینڈ آپ بھی جب جائیں تو اس کو, آپ آئی ہوپ کہ آپ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے دونوں دفعہ اس کو ایکسپیرینس کریں گے. لیکن میں نے آتے ہوئے کیا تھا کہ یو ڈو ناٹ نیڈ پاسپورٹ ٹو ایگزٹ.
आप इसको सिर्फ एक दफ़ा सोच के देखें कि यू डोंट नीड पासपोर्ट. आप गए, वहाँ पे एक गेट ओपन हुआ है, जस्ट एंटर्ड, और उसने इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपकी पिक्चर ली है, ठीक है, और नीचे नाम लिखा हुआ है अहमद मंजूर ये, ठीक है, पासपोर्ट नंबर, योर फ्लाइट इज दिस एंड ऑन टाइम, प्लीज चेक इन, दैट्स इट. और मैं गया हूँ, दैट्स इट, खत्म हो गई स्टोरी. मुझे कोई स्टैम्प की जरूरत नहीं है, जस्ट दिस इज द डिजिटलाइजेशन. यानी जब मैंने ये चीज़ देखी थी तो आई वाज एस्टोनिश्ड, यानी कि एज ए टेक्नोलॉजिस्ट कि यार सीरियसली क्या बात. तो अब आप सोच के देखें सिर्फ, आप यहाँ एयरपोर्ट पे जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, डू वी नीड दोस? नो, वी डोंट. अच्छा, हम टेक्नोलॉजी जब इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, उसकी एप्लीकेशन, तो हम लोग तो उसके आर्किटेक्चर में घुस जाते हैं, यार कैसे किया होगा, अच्छा ये इस तरह हो रहा है, ये देखिए मैंने आपको बता दिया, इमेज प्रोसेसिंग थी और कुछ भी नहीं था. यानी वही जिस तरह डॉट्स नजर आते हैं, उससे इस तरह से मुझे नजर आया, यानी कि मेरी उस पे होते हुए, और नीचे मेरा नाम, और जिनका नहीं आ रहा था उन्होंने उसके लिए क्या रखा हुआ था, अपना पासपोर्ट स्कैन करें. जो पासपोर्ट पे नहीं आते थे वो जाके मैनुअल लाइन में लगते थे. लेकिन आई एम सरप्राइज कि मतलब जैसे ही आपके फेशियल रिकग्निशन के थ्रू उसने फेस स्कैन किया, कितना हैवी कंप्यूटर, कितने हैवी जीपीयूज यूज कर रहे हैं, क्योंकि 7 बिलियन की आबादी है दुनिया की. उसके वजह चले अगर लेट्स से 25% के भी पासपोर्ट्स हैं, तो उस पूरे डीबी के अंदर उसने सर्च किया आपके फेस को. अब जाते हैं इसकी बैक एंड पे. वो ये चीज यानी कि उनकी डिजाइनिंग चल रही है 2010 से, और आज वो इसको अचीव कर रहे हैं इस पूरी चीज को. अब आप सोच के देखें कि 2010 से वो ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और कौन फ्रीक्वेंट लोग हैं. अच्छा, फिर जाते हुए जब उन्होंने मेरी वो पिक्चर लेते हैं ना जाते हुए, हमारे यहाँ तो उन्होंने वो वेब कैम लगाया हुआ ना, इसकी तरफ स्माइल कर दें बस, ऐनक उतार दें, ठीक है. वहां पे उन्होंने बकायदा रोबोटिक्स का एक पूरा सिस्टम लगाया हुआ. मैं जब पहली दफा भी गया, जब तब गया था ना लास्ट ईयर भी, जब वो तो तब भी मैंने वो देखा था कि ये इतना क्या, वो ग्रीन लाइन चलती थी और वो कहता था ओके नाउ यू डन. तो वो डेटा पिछले कितने सालों से इकट्ठा कर रहे हैं, उनको पता, इवन वो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैंने नेक्स्ट टाइम कब आना है. तो हो सकता है उस दिन वो मुझे ऑफर्स भेज रहे हो कि हाँ जी आप इस होटल में ठहरे, हम आपको डिस्काउंट देंगे. बिकॉज देखें उनकी तो इकोनॉमी है ना ट्रेवलिंग के ऊपर, तो हम इसको नहीं अचीव कर सकते. तो व्हाई नॉट. हम लोग सर अभी तक बेसिक डिजिटाइजेशन नहीं कर सके, हम लोग प्रोक्योरमेंट के सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट नहीं कर पाए. बाय द वे केपीके में मुझे एक इनिशिएटिव जो अच्छा लगा था कि दे आर पेपरलेस गवर्नमेंट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो देख के. जो तब के आईटी मिनिस्टर थे उन्होंने उसको वो किया था, तो वो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था. यानी कि आपकी समरी जो पता नहीं 100 दिन में वो अप्रूव होती थी, दैट इज गोइंग टू बी इन 10 days. और क्या चाहिए आपको. तो दैट इज द फर्स्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान हु बिकम दैट बेसिकली पेपरलेस, जिसका सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उस पर चली गई थी. तो मुझे बड़ा, तो मैं भी कह रहा हूँ ना, हम टेक्नोलॉजी जब देखते हैं तो हमें बड़ा वो होता है यार, एक्साइटमेंट होती है कि मजा आता है. ट्रस्ट भी पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आईटी कंपनीज बैठी हुई है जो बाहर मतलब फॉर्च्यून 100 कंपनीज को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी सिस्टम्स डेवलप कर रही हैं. और यहाँ पे मतलब मैं समझता हूँ कि हम लोग ये सारी अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लूजिंग दिस टैलेंट. मतलब यार आपको यहाँ पे अगर टैलेंट खुद बैठा हुआ है, कंपनीज बैठी हुई है, एक्सपर्टीज बैठी हुई है, जो कि यूएस के अंदर फॉर्च्यून 100 कंपनीज को हेल्प कर रही हैं, उनके गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर काम कर रही है, तो भाई आप उनसे क्यों नहीं हेल्प ले रहे हो. यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे खुशी खुशी अगले फ्री में भी काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क की बात हो रही है. और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स. कुछ इदारे हैं जिनको हमने अपने एलएमएस को फ्री ऑफ चार्ज ऑफर किया, लेकिन उनको उसमें अपना फायदा नजर नहीं आया. मैं समझ सकता हूँ. आप जाके किसी को ये कहते ना मैं फ्री में कंसल्टेंसी देना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे क्यों क्यों जाओ यार काम करो अपना. तो आप हमें जो है ना, देखें हमें एज ए नेशन सबसे पहले तो ये पैसों वाली एक रेस से बाहर निकलना. ठीक है. When we work together, तो हम एज ए टीम काम कर सकते हैं, एज ए नेशन काम कर सकते हैं. हमारे यहाँ हमें सिखाया जाता है, यानी आप भी जब यूनिवर्सिटी में होंगे आपने शायद कभी भी नहीं सोचा होगा आपने यू बिकम एंटरप्रेन्योर. मैंने भी कभी नहीं सोचा था. यानी हम सारे, आप जैसे मेरे जैसे, हम लोग एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, काम उन्होंने सोचा भी नहीं था. यानी मैंने अपनी पहली कंपनी जो 2010 में बनाई थी, वो इतना बड़ा फ्लॉप थी कि मैं कई दफा सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ कि 25 लाख का नुकसान भी किया था, और जी 6 महीने बाद कंपनी भी बंद करनी पड़ गई थी. फिर उसके बाद जॉब साइकिल में आया, फिर निकला, क्योंकि तब मैं उन लोगों से मशवरा करता था जो जॉब करते थे. अब मेरा साइकिल डिफरेंट है, यानी सर्कल डिफरेंट है, अब लोग डिफरेंट तरह के मिलते हैं. तो हमें सबसे पहले तो उस साइकिल से बाहर निकलना. अगर आपको उन 1% में शामिल होना जो कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं, और फिर कंसिस्टेंसी. बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस. हाँ, कि आप खड़े हो गए हैं तो जी खड़े हो गए हैं बस. देखें एक ना, मैं साइमन सिनेक को एक दफा सुन रहा था, यू नो साइमन सिनेक, या तो
وہ کہتا ہے کہ جی آپ برش کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. چلیں میں اس سے بھی آگے کی مثال دیتا ہوں, بیکاز وی آر فٹنس فریکس رائٹ. اس دن فہد بھائی سے بھی میرا پوڈ کاسٹ تھا, تو ان سے بھی ہی از آلسو فٹنس فریک ماشاء اللہ کراچی میں, تو ان سے بھی, تو وہ بھی یہ دیکھیں گے تو ان کو کہے گا میں نے ان کو جو ہے نا مینشن کر رہا ہوں فہد بھائی, ٹھیک ہے اوکے. تو اب آپ ایک دفعہ جم جاتے ہیں, آپ ایک دفعہ 50 گھنٹے ایکسرسائز کر کے کیوں نہیں باڈی بنا لیتے؟ وائی یو گو ایوری ڈے فار 30 منٹس اینڈ ڈو, بیکاز کنسسٹنسی. آپ 8 مہینے, ایک جو نیوٹریشنسٹ ہوتا ہے یا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کم سے کم 8 مہینے آپ اپنی باڈی کو اسٹریس دیں تو اس میں چینج آنا شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. اب اسی طرح وہ برش کی مثال لے لیں, جو میں سائمن سنے کی بات کرتا کہ آپ برش ڈیلی کرتے ہیں, کیوں ایک دفعہ 2 گھنٹے کر کے کیوں نہیں صاف کر لیتے اس کو آپ؟ اس کی ایک اور مثال بھی لے سکتے ہیں جب شادیوں پہ کھانا کھلتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو لگتا ہے آج ہی کھا لینا بس, جتنا ہے آج ہی کھا لو, آگے مہینہ کھانا نہیں ہے. تو جو ہے کیوں اتنے وہ, یہ دیکھیں یہ وہ بات ہے جو ہمیں, ہمارا شاید ایجوکیشن سسٹم ہمیں نہیں سمجھا پا رہا, ہمیں تربیت میں پرابلم آ رہی کسی جگہ پہ. یعنی آپ اس کو امیجن کر کے دیکھیں, وائی وی آلویز وانٹ, دیکھیں اگر ایک بندہ پیچھے سے آ رہا ہے اسپیڈ میں, یار آپ گاڑی سائڈ پہ کر لیں, کیوں ریس لگا رہے ہیں آپ اسے؟ نہ میں جانا نہ میں جان دیا گا, نہ کھیڈا گا نہ کھیڈن دیا گا. وائی؟ اچھا پھر اگر خدا نہ خواستہ آپ نے نمبر پلیٹ اپنی کوئی اسپیشل والی لگوائی ہوئی ہے تو آپ اور چوڑے ہو کے پوری روڈ پہ گاڑی یوں گھما رہے ہوتے ہیں. وائی؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جی آپ اپنے اندر ایک برداشت پیدا ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اندر جو ہے نا, یہ میں ینگسٹرز کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان میں یہ چیز کافی, اچھا ہم جو تھے نا, وہ جیسے یہ بھی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو میں مزاحتاً بات کرتا ہوتا ہوں کہ جی جب ہم چھوٹے تھے ہم پیرنٹس کی سنتے تھے, اب ہم بڑے ہو گئے ہیں ہمیں بچوں کی سننی پڑتی ہے, ہماری سنی نہیں کسی نے, ہماری تو باری نہیں آئی, بیچ میں بیگم بھول گئے ہم. ایگزیکٹلی بات وہی ہے نا, تو میں وہی کہہ رہا ہوں ہماری تو باری نہیں آئی, ہماری تو باری نہیں. یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ آفس میں آتے ہیں تو پھر شاید تھوڑے لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں, ورنہ تو وہ بھی اس لیے سن لیتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں, نہیں تو شاید وہ بھی چل نکل. Who are you? کل میں ایک بڑا مزے کا ایک مجھے نا کسی ایک بڑے پیارے دوست نے مجھے بھیجا کہ جی کہ اس میں بیوی اس کو پنجابی میں کہتی ہے, میں پوری شاعری تو نہیں غالباً کر سکتا لیکن بیوی شاعری میں کہتی ہے ایدی کی گل آ اینڈ پہ نا, کہ ایدی کی گل آ, تو وی آر دوز پیپل, ایدی کی گل آ. گڈ یار, زبردست. تو بڑے عرصے بعد کوئی ہم لوگ تھوڑا سا کافی سارا فن کر رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے, آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ. تو یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں احمد بھائی. بیچلرز ان ڈیٹا سائنس لانچ ہو گیا, بہت ساری یونیورسٹیز نے شروع کر دیا. بیچلرز ان بگ ڈیٹا, بیچلرز ان سائبر سیکورٹی, بیچلرز ان بلاک چین میں نے کہیں نہیں دیکھا. ایکچولی اس کی ہم لوگوں نے بات کی تھی, بٹ دے obviously basically it should not be like bachelor in blockchain, it should be like bachelor in emerging technologies. Because جب تک کنیکشن نہیں ہوگا آپ کا, ہاں اسپیشلائزیشن آپ فائنل پروجیکٹ کسی اور میں کر سکتے ہیں. تو یہ اے آئی, سائبر سیکورٹی, ڈیٹا سائنس یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی لائک کہ جی اٹس بیچلرز ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. تو اس کے اندر پھر بہت ساری ٹیکنالوجی, ایون 5G آ جاتی ہے اس کے اندر, رائٹ. تو آپ اس پہ ریسرچ کریں, آپ اس کے بعد جو آپ کا لاسٹ ایئر ہے اس میں آپ اس کو اسپیسیفائی کر لیں کہ دیٹ آئی ایم اسپیشلائزڈ ان دس. تو یہ وجہ میں نے یہ پروپوزلس کچھ یونیورسٹیز کو دیے ہیں. اف اسٹل somebody wants تو پلیز کانٹیکٹ both of us. اوکے رائٹ. تو یونیورسٹیز کا وہ ایک کریکولم ایسا ہے اور سم تھنگ. ابھی مجھے پچھلے دنوں بڑا دکھ ہوا ایک جگہ پہ دیکھ کے, وہ یہ تھا دا بک وی ریڈ ان 2000 when I was graduated. تو سیم بک آج کل کے بچے پڑھ رہے ہیں. سیریسلی اور ٹیکنالوجی کی میں پریشان ہو گیا تھا دیکھ کے کہ یار ابھی بھی آپ کو یہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. وائی؟ یعنی آپ باہر کا کتاب, آپ ایون او لیولز کی کتاب اٹھا کے دیکھیں اس میں بلاک چین کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنسز. تو میں نے بائی دا وے بلاک چین فار کڈز ہم لوگوں نے ایک پورا پروگرام جنریٹ کیا تھا جو ہم نے BTA کے ساتھ مل کے کیا, سارا کچھ کیا. لیکن آپ امیجن کریں وہاں پہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. آپ لوگ وہی پرانی, نہیں جی ہمیں چینج کرنے میں ٹائم لگ. وائی کیوں آپ وہی دقیانوسی چیزیں چلاتے جا رہے ہیں, کیوں ٹریڈیشنل چیزوں کو ہی لے کے چلتے جا رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم اوفینسو, یا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو پرانی چیزوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. اصل میں
नई चीज़ों के लिए तैयार करना है, बिल्कुल क्योंकि उसने 4 साल बाद ग्रेजुएट होना है, तो अगर उसको नहीं पता होगा 4 साल बाद का, तो वो आके ना ऐसे ही देख रहा होता है यूं करके। जैसे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि जी, अच्छा ये भी मैं नॉर्मल मिसाल कहती, आप बच्चे पता क्या सोचते हैं, जब हम भी ग्रेजुएट हो रहे थे तो हमें लगता था कि जी जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल शाहरुख खान की तरह बाएं फैला के खड़ी होगी, आ जाओ, और हम कहेंगे कि थे राइट, पढ़ा कुछ, इंटरव्यू कुछ और दिया, सीखा कुछ और, काम कुछ और ही कर रहे काम हैं। कुछ और ही कर रहे हैं, ऐसे ही। तो दिस इज हाउ वी सर्वाइव। Yes. हम नहीं चाहते कि हमसे अगली जनरेशन इस चीज में सर्वाइव हाँ, करे। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Exactly. That's why we are doing this Youth on the Rise, या अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि अवेयरनेस क्रिएट करें। ताकि देखें आज का पॉडकास्ट या जितने भी पॉडकास्ट में हम लोग जाते हैं, जितने सेशंस आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, क्यों जाते हैं हम लोग वहां पे, और हम इससे कुछ चार्ज नहीं कर रहे होते, हम इसलिए देने जा रहे होते हैं, यानी इतना इतना सफर करके आते हैं। जैसे मैं भी, आपको पता है मैं लाहौर पेशावर में, जैसे मेरी ट्रैवलिंग आपको पता ही है माशाल्लाह, ठीक है, तो मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का, मैं पहले सिर्फ द रीजन ताकि लोगों तक अवेयरनेस चली जाए किसी तरीके जिसने आपको पे भी करना था वो भी नहीं अब करेगा। से। नहीं, वो जिन्होंने करना होता है वो करते हैं, अच्छा, वो करते हैं, सही वो है। करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। द रीजन इज के जब चीजें देखें, कुछ मकसद होते हैं ना चीजों के। अब आपने हमने मिलके एक ब्लॉकचेन का पूरा प्रोजेक्ट चलाया, उनमें हमने 10 घंटे की ट्रेनिंग्स ली हैं हमने, 50 आवर्स 5 डेज में हमने पूरे किए। जो बच्चे आगे बैठे हुए थे, दे आर गुड वंस, उनमें कुछ डीन्स भी थे, कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हेड थे, फैकल्टी से थे, बड़ा मजा आया था उनसे बात करके। जो अपनी ईगो में कुछ सीखना नहीं चाहता ना इंसान, वो एक जगह पे फंसा रहता है हमेशा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ट्रू। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि हम अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दे रहे हैं देनी चाहिए हमें, जो हम कर रहे हैं हमें करना सबका चाहिए, जारी है मेरे हिसाब से। जितना कर सकते हैं। देखें, आप एक पॉडकास्ट रन कर रहे हैं, आपको क्या पड़ी है कि आप अपनी बिजनेस मीटिंग छोड़ के यहाँ पे बैठ के ये काम कर रहे हैं? रीजन है ना, एक कॉज है, एक विजन है, कर रहे हैं, उस पे ठीक काम है। कर रहे हैं। तो मैं क्यों आपके सामने बैठा हूँ? रीजन कि ठीक है जी, वो अलग बात है, हम दोस्त भी हैं, वो एक अलग बात है, राइट, ठीक है, लेकिन द रीजन कि जी अवेयरनेस मिले लोगों को, पता लगे नई टेक्नोलॉजीज कौन सी। आज मैं अगर किसी से बात करूं कि जी साइबर सिक्योरिटी पे, मैं किसी को कहूंगा जी कोर्स लॉन्च करना, वो मुझे पता लगेगा, वो मुझे 1902 का सीईए चला के दिखा देगा, ये है जी कोर्स। सही, सीरियसली? मैं अच्छा, आपने कोई इनोवेशन नहीं की इसका? नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है। मैं कहा 5G को कैसे इसमें सिक्योर करोगे? सर 5G भी सिक्योर करना है? अच्छा ठीक, तो इस तरह से चल दिस रही इज है। हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज, यस। और इवन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यू एंड इवन माई सेल्फ, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान बाय चॉइस। भैया एग्जैक्टली, मतलब आप यानी तो हम सब छोड़ छोड़ छाड़ भी के, करके आए हैं, हम लोग सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो या आई मीन वी लिविंग इन पाकिस्तान बाय यानी चॉइस। हम आज, अभी वो अली भाई से भी बात हो रही थी कि हम आज अगर ट्राई करें ना कि जी बाहर जाना है, विद इन अ डेज Yeah. हम शायद चले जाएंगे, ठीक है, और पूरी फैमिली को इमिग्रेट करा के बड़े आके आराम से। यानी आज इमिग्रेशन अप्लाई करें तो क्या कहते हैं 2-3 महीने में मिल भी जाएगी बड़े आराम से, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेजुएट हमारी चीजें उस किस्म की हैं, बिजनेस उस किस्म का है, ठीक है जी, अब आ जाओ। True. वो जाहिर है उनको तो अपनी तरक्की चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे वही बात कि बाई चॉइस बैठे हैं। आई लाइक दिस वर्ड कि बाई चॉइस हम यहाँ पे हैं, बिल्कुल, ठीक है। जैसे इसकी मैं मिसाल ऐसे दे देता हूँ छोटी सी, कि हम बाय बॉर्न मुस्लिम्स हैं, इसलिए हमें कदर नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बाय चॉइस मुस्लिम्स हैं, रिवर्ट हुए हम। जो कन्वर्ट हुए या कन्वर्ट नहीं भी हुए, उनके पेरेंट्स कन्वर्ट हुए थे, लेकिन दे आर बाय चॉइस मुस्लिम्स, बाय लिविंग इन द क्रिश्चियनिटी और या एनी अदर सोसाइटी, दे आर बाय चॉइस मुस्लिम्स, एंड दे आर बेटर मुस्लिम्स। दे आर बेटर मुस्लिम्स। Far आई better. इवन नो, मेरे मेंटोर हैं सामर रजावी साहब, यार ही नोज कुरान कंप्लीटली, माशाल्लाह। ही नो अहादीस की किताबें सारी की सारी कंप्लीटली, देन उनको शान नज़ूल तक पता, उनको अहादीस को कुरान से जोड़ना आता, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। और जब वैसे ही एक बात करता हूँ, पिछले दिनों मैंने दाढ़ी को थोड़ा सा वो किया था, लोग बड़ा है ये आपने क्या किया, तो मैंने कहा सुन्नत पूरी की है, तो कहता अच्छा ये सुन्नत है। मैंने कहा जब वो बंदा मुझे किसी बात पे कह देता है ये सुन्नत है, ठीक है, हाँ इसके पीछे कुछ और मोटिवेशंस भी हैं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ठीक है ठीक है, लेकिन जो है ना, जब वो बंदा मुझे कहता है ना ये सुन्नत है, मैं वाकई फिर उस बात को सीरियस लेता हूँ। राइट, तो हम बाय चॉइस यहाँ पे हैं। जैसे अभी आपने बात की ना, तो मेरा ख्याल है कि फायदा लोगों को उठाना चाहिए इस चीज से, सीधी बात है, राइट। हम मुफ्त में ज्ञान बढ़ रहा है तो भाई फायदा उठाएं। हम यानी हम वो 3 इडियट्स सबने देखी थी, मुफ्त में ज्ञान बढ़ रहा है, right? तो वो मुफ्त में ज्ञान बढ़ रहा है, ले लो भाई, ले लो भाई, मर्जी है आपकी। जी हाँ। तो खैर आखिर में अहमद भाई बहुत मज़ा आया, दिल नहीं कर रहा कि इसको हम करें, लेकिन वक्त की थोड़ा सा महदूद है, आपने भी आगे निकलना है। तो फाइनल वर्डिक्ट आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम ग्लोबल लैंडस्केप पे आप क्या इन्विजन करते हैं कि इन द नेक्स्ट 5 to 10 years वेयर विल इट बी स्टैंडिंग? इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर।
Right. बिकॉज ऑफ डिजिटल आइडेंटिटीज राइट नाउ. यानी अगर आपको दुबई ये कह देना सिर्फ कि अपना डेटा डिजिटली हमें दें, वी आर जीरो. हम सिर्फ नादरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे कई दफा डेटा गुम भी जाता है. सॉरी टू से बट दिस हैपन टू मी. तो डेटा गुमता है वहाँ पे, हाँ. ठीक है. इसका मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, अगर यानी आप थोड़ा सा टाइम और वो कर सकें. एक दफ़ा क्या हुआ जी कि मैंने ना, इन्होंने पहले मेरे नाम की एक दफ़ा स्पेलिंग गलत कर दी है, मैं दोबारा बनवाने गया. अच्छा, फिर मैं थोड़े दिनों बाद दोबारा लेने गया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था. तो वो मुझे कहते हैं कि जी आपका डेटा गुम हो गया. एंड दैट वाज आई वाज शॉकिंग लाइक, यानी आपकी नेशनैलिटी चोरी होगी, मतलब आपकी आइडेंटिटी डेटा गुम हो खत्म गया. होगी. कैसे डेटा गुम कैसे हो सकता है यार? ठीक है. तो नहीं जी, आप दोबारा से फॉर्म शॉर्म भरें. अच्छा. पिछले दिनों मैं लाइसेंस बनवाने गया, पिछले दिनों नहीं, तकरीबन 1 साल पहले. तो वहां पे जी मैं एज ए वही टेक्नोलॉजिस्ट जो हम बातें सो कॉल्ड सुनते हैं लोगों से, और वो कि जी वो सब कुछ डिजिटलाइज है आप बस. तो मैं आईडी कार्ड लेके गया था अपना. वो कहते नहीं सर आपको फाइल फिल करनी पड़ेगी. फाइल क्यों फिल करनी पड़ेगी? ये मेरा यार लाइसेंस एंड आईडी कार्ड, जस्ट पुट इट और अपडेट कर दो उसको. नहीं सर आपको जो है. तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चीजें आगे बढ़ानी है. कहाँ ये रहेगा? 5 सालों की गेम है. यानी कि आप 2035 की प्रेडिक्शन है, हर बंदे के हाथ में क्वांटम कंप्यूटर होगा. यानी हमें आईफोन 15 प्रो लेने का शौक बहुत है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वाई टाइटेनियम, उसमें टाइटेनियम क्यों यूज किया गया. राइट. बिकॉज टाइटेनियम की लाइफ ज्यादा होती है. इसका मतलब वो जो आपको मशीन दे रहे हैं वो इस लेवल की मशीन है अब के जिसको आप 10 साल तक सर्वाइव करवा सकते हैं. राइट. तो वो तो हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को शौक है ना, एप्पल से यूं लड़कियों को करके पिक्चर्स लेती हैं समथिंग, राइट. ठीक है, एप्पल नजर आना चाहिए, बाकी है लड़के भी लड़कियां भी, ठीक है ना. तो नहीं, दैट इज बियॉन्ड दैट. तो वो उड़ने वाली गाड़ियां, ड्राइवरलेस कार, दिस इज मैटर ऑफ 10 years, नॉट, यानी इससे ज्यादा का काम नहीं है. यानी 10 years से ज्यादा का ना 7 years, 2030 की बातें हो रही हैं, सस्टेनेबिलिटी की जो सारी बातें हो रही हैं. बिल्कुल. तो मेरा ख्याल है कि डिजास्ट्रिक चेंज, हर टेक्नोलॉजी आपको नजर आएगी और उस लेवल पे नजर आएगी कि अगर आप अभी पार्ट नहीं बनेंगे देन हम अपने आप को कह सकेंगे हम स्टोन एज में चले गए. सो दैट्स द थिंग. जबरदस्त. अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो once again. जज़ाकमुल्लाह खैर. Take care. Thank you guys. Allah Hafiz.